Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard science chapter 5 substance in the surrounding, their states and properties. Introduction. The main points of this chapter are change of states of substance, heating and change of physical state, the temperature and the thermometer, boiling and condensation, freezing, various uses of changes in physical state, sublimation and properties of substances and metals. Explanation. Change of states of substances. Activity. Take a piece of wax in a bowl and heat them on a candle or a spirit lamp. Observation. At first, the wax was in solid state. On heating, it melts and converts into liquid state. If we keep the same bowl in cold water, the wax gets converted into solid state again. When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substances. When the state of substance change if it is heated or cooled. Every substance in our surrounding is found in either the solid, liquid or gaseous state. For example, camphor, naphthalene ball are in solid state but becomes gaseous. Similarly, coconut oil, ghee convert into liquid to solid state. Water exists in all three states. That is, the ice is a solid state of water, while steam, vapor is a gaseous state of water. In the 19th century, scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend upon its physical state and the arrangement of the particle in it. Difference between solid, liquid and gaseous. Solids. Example, a piece of iron. Liquids, water, spirit, oil. Gases, air. Solid. Number 2, shape. Has a shape of its own. Retains shape no matter how it is kept. Liquids. Does not have a shape of its own. Take the shape of container. Gases. Does not have a shape of its own. Occupies all the available spaces. Solids. Volume. Has a definite volume. Solid when poured on a flat surface from a heap. Liquids. It has a specific volume, occupies definite portion of a container. Spreads on flat surface on pouring. Flows downwards along a shape. Takes the shape of a container. Gases. Does not have a definite volume. On changing pressure, its volume also changes. Heat and change of physical state. Change in the physical state of a substance is effect on the amount of heat in it. On gaining the heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gases to liquid and liquids to solid state. मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट दी जाए तो वो सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से वो गैसेस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. और इसका उलट करेंगे, अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो गैस से चेंज होकर के लिक्विड बनेगा, लिक्विड से चेंज होकर के वो सॉलिड बनेगा. तो इस तरह से सब्सटेंस का जो है यानी हीट निकालने पर या हीट देने पर, हीट निकालना मतलब उसको ठंडा करना और हीट देना मतलब उसको गर्म करना, हीट देना. तो अगर किसी भी सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं,
तो वो अपनी स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में चेंज होता है, जबकि इसके उलट में अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आ जाएगा। टेम्परेचर एंड अ थर्मोमीटर। When a substance gets heated, it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. A thermometer is used to measure temperature. Degree Celsius is the unit of measuring the temperature. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. Activity, measurement of thermometer, temperature and its record. Procedure, take a thermometer from a laboratory. The bulb at its lower end is filled with the mercury. The mercury rises to a certain level in the capillary tube above the bulb. Reading the figure near the level of mercury tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer. Repeat the activity, taking some hot water in vessel and cold water or ice in another. Note the temperatures. For example, boiling water is 100 degrees centigrade, freezing water is 0 degrees centigrade, air that is winter night is below 15 degrees centigrade, air summer afternoon is greater than 35 degrees centigrade, inside the fridge below 5 degrees centigrade, inside the freezer it is minus 18 degrees centigrade, and the body temperature is 37 degrees centigrade approximate. Boiling. Water is continuously evaporating. This evaporation occurs from the surface of water. What happens when the water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at a faster rate. When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of body of water. When we see water bubbles rising to the surface and steam mixing in the air, this is called boiling of water or ebullition. At sea level, pure water boils at 100 degrees centigrade. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. Condensation of steam also takes place at 100 degrees centigrade. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. Freezing. Water kept in a fridge or on ice becomes cooler, that is, its temperature falls down. At a certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and form ice. The temperature at which this happens is called the freezing point of water. When ice gets heated, it starts melting or changing into the liquid state again. Ice melts at 0 degrees centigrade. It means that the freezing point and the melting point of water are one and the another, nothing but the same. While gaining heat, melting liquid, gas, vapor, boiling, various uses of changes in a physical state. Candles are made by melting paraffin wax.
Solid carbon dioxide, dry ice is used to make ice cream and to keep it frozen. Liquid nitrogen is used in animal husbandry. Sand, silica is melted to make glass. Metals like gold and silver are melted to make ornaments. Iron is melted to make tools. Sublimation activity. Take some sand in crucible, put a few iodine crystals on it. Place the crucible on a tripod to heat it. Block the steam of a funnel with a cotton plug and place it inverted over the funnel. Light the burner and heat the mixture. Observation: iodine crystal do not melt on heating but changes directly to the gaseous state. When the fumes of iodine hit the walls of funnels, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. The change of a solid substance directly into a gas or a vapor without first changing into a liquid is called sublimation. For example, यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोई भी सब्सटेंस अगर मेल्ट करने पर या फिर हीट लेने पर किसी भी तरह से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो वो जो है उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. मतलब लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अम्मी जो है आपके शोकेस में या कबर्ड में या फिर घर में और भी बहुत सी जगहों पर अम्मी जो है आपकी वो मॉथ बॉल्स रखती है. मॉथ बॉल्स का मतलब क्या होता है? जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं ना, काफुर की गोली जिसको हम बोलते हैं, कॉकरोच भगाने के लिए अम्मी कपड़ों के बीच में या फिर शोकेस में या फिर इधर उधर अम्मी घर में रखते हैं. आपने देखा होगा थोड़े दिन बाद वो काफुर की गोली जो रहती है, मॉथ बॉल्स जो रहते हैं, वो छोटे छोटे होते होते एक दिन गायब हो जाते हैं, लेकिन कपड़ों में से उनकी स्मेल बहुत अच्छे से आती है. तो ये किस तरह से हुआ? ये भी एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का. जो मॉथ बॉल होता है वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज नहीं होता है बल्कि वो गैस बनता है और इसकी फ्यूम्स जो है, इसकी स्मेल्स जो है वो पूरे कबर्ड में, कपड़ों में फैल जाती है और उसकी वजह से कॉकरोच वगैरह आते नहीं है. तो ये सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कैम्फर बॉल या नेफ्थलीन बॉल जो है वो भी सब्लिमेशन होता है उनके साथ भी, कि वो धीरे 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 वेपर्स बनते हुए गैस में कन्वर्ट होते हैं. कौन सी स्टेट से? सॉलिड स्टेट से. मतलब जो मॉथ बॉल होता है वो पहले सॉलिड स्टेट में होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है और डायरेक्टली वो गैस में बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होके चले जाता है. तो इसलिए ये प्रोसेस भी जो है एक तरह का सब्लिमेशन प्रोसेस है. Properties of substances. If we observe all the solid substance, we can realize different properties of substances, such as their transparency, hardness, weight, color, the sound produces from it, solubility in water, etc. The substance can be put to use according to their properties. If pressure is applied on substance like chalk, bricks, alum, glass or a Rajgira body, these substances break into small pieces or a particle. Such substances are said to be brittle. This property of substance is called brittleness. ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कांच को हम जरा सा हिट कर दे तो वो फौरन से ब्रेक हो जाती है. आपके हाथ से ग्लास जो है, पानी पीने का ग्लास जो होता है, वो टूट गया, फौरन टूट जाता है. जरा सा धक्का लगा, कांच की प्लेट आपके हाथ में थी, वो छूट के गिर गई या धक्का लगी तो फौरन से वो टूट जाएगी. आपके पास चौक का पीस होता है, क्लास में आप लेते हो तो चौक का पीस अगर आपके हाथ से छूटा या टीचर के हाथ से कई बार चौक गिर जाता है तो वो फौरन टुकड़े टुकड़े हो जाता है. तो आपने ये भी देखा है कोल या चारकोल होता है, कोल यानी कोयला जो होता है वो भी हाथ से गिर जाता है तो फौरन से वो भी छोटे मोटे टुकड़ों में बट जाता है. तो ऐसी चीजें जो जरा सा धक्का लगने से या गिरने से
फटाक से टूट जाती है, जल्दी से टूट जाती है, हम उसे ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है फूटने वाली या टूटने वाली चीज, यानी झट से टूट जाएगी जो चीज, उसे हम ब्रिटल कहेंगे। मतलब एक ही बार उसको धक्का लगेगा तो फूटक हो जाता है, उसमें फूट पड़ जाती है, तो ऐसी चीजों को ब्रिटल कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। जैसे ग्लास है, चॉक पीस है, कोयला है और भी बहुत से सब्सटेंसेस है जो फौरन से धक्का लगने या फिर हिट करने पर टूट जाते हैं, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? ब्रिटल। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस। The hardness of a substance is determined by how much resist it offers to the substance being pushed through it. For example, the nail easily pierces a cardboard but not the piece of a wood. हार्डनेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। जितना हार्ड रहेगा वो उतना ड्यूरेबल रहेगा। ड्यूरेबल मतलब बहुत ज़्यादा देर तक के इस्तेमाल होगा। अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि एक जो कीला है वो आप कार्डबोर्ड में बहुत आसानी से चुभा सकते हो, उसको फंसा सकते हो, लेकिन अगर आपको यही कीला जो है, नेल जो है, वो लकड़ी में अगर डालना है तो आपको बहुत ज़्यादा उसको हैमर से मारना होता है, हथौड़ी से मारना होता है, तब कहीं जा कर के वो वुड में जो है वो कीला लग पाता है। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा सबसे ज़्यादा हार्ड है? ऑब्वियसली द वुड सबसे ज़्यादा हार्ड है। कार्डबोर्ड इतना जो है वो हार्ड नहीं होता है। Some substances change their shape when a force is applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. Elasticity एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें जो है कुछ सब्सटेंस के आप ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो अपना शेप जो है या स्ट्रक्चर जो है थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो फोर्स को हटा देते हो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड, आपके हाथ में रबर बैंड होता है, आप उसको रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हुए बहुत देर तक के उसको स्ट्रेच करते हो, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हो रबर बैंड को, वो वापस से अपने स्ट्रेचिंग छोड़ करके वापस से अपनी जो है ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो फोर्स लगाने पर अपनी शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन जैसे ही फोर्स हट गया वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो हम ऐसे सब्सटेंस को इलास्टिक सब्सटेंस कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी मतलब फोर्स लगाने पर वो जो है अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रबर बैंड, स्पॉन्ज। Take a flat metal sheet of the size of a notebook. Holding it an angle, put a drop of water or a honey and gum at different places on the board. They flow down the slope. Liquid flow downwards on sloping size. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid. अभी यहाँ पर क्या बताया है कि फ्लूइडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रॉपर्टी है? लिक्विड्स का प्रॉपर्टी है। यानी लिक्विड जो है सब्सटेंस वो बहते हैं। आपने देखा होगा पानी भी बहता है, दूध भी बहता है, ऑयल भी गिर जाए तो वो भी बह जाता है। शहद का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो शहद भी बह जाता है। तो बहने की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? लिक्विड्स में और गैस में होती है। लिक्विड्स में ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि ये फ्लूइडिटी कहते हैं इसे, बहना यानी फ्लूइडिटी। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी की वजह से हम लिक्विड सब्सटेंस को फ्लूइड सब्सटेंस भी कहते हैं। Now the next one is the mass of different substances having the same volume can be different. This difference is because of the difference in their densities. Between substances of the same volume, the ones with greater density are heavier than those of lesser density. देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का भारीपन। अभी आपके सामने एक छोटा सा कॉइन है, एक पेपर है या फिर एक छोटी सी पिन है। इन तीनों में आप बताइए कि कौन सा ज्यादा आपको भारी या हैवी लगेगा? जाहिर सी बात है आपको 5 रुपए का एक कॉइन या 2 रुपए का एक कॉइन ज्यादा हैवी होगा बजाय पेपर के, बजाय एक छोटी सी पिन के। इन तीनों में कॉइन जो है वो सबसे ज्यादा हैवी होगा। तो वो आप जैसे ही पानी के एक छोटे से
बकेट में डालते हो या एक ग्लास पानी में डालते हो तो कॉइन सीधा जाकर के नीचे सेटल हो जाएगा, पेपर ऊपर जो है वो उसके सरफेस पे फ्लोट होगा, और जो पेन है वो भी नीचे जाएगी लेकिन वो थोड़ी हल्की होगी। तो जो सब्सटेंस होते हैं उनमें एक भारीपन यानी हैवीनेस करके एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम उसका डेंसिटी कहते हैं, और ये डेंसिटी हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है। अब जैसा आपके लिए सिंपल हम एग्जांपल दे रहे हैं, वाटर का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, इसीलिए वाटर जो है पतला होता है। आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर है तेल, खाने का तेल या किसी भी तरह का तेल जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो ऑयल जो है यानी किसी भी तरह का ऑयल जो है वो ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू वाटर। इसी तरह से मिल्क भी है, मिल्क जो है वो वाटर से थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा हैवी होता है, इसीलिए जो है इनमें सब्सटेंस का फ्लोट होने का जो तरीका है वो अलग होता है। और ये जो डेंसिटी है ये सिर्फ लिक्विड्स में नहीं होती है, सब्सटेंसेस बोला जाए तो सॉलिड और गैसेस सब्सटेंस में भी डेंसिटी का असर हमें दिखाई देता है। Some said substances dissolve in a particular liquid. If solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Salt is soluble in water but insoluble in kerosene. अब यहाँ पे soluble और insoluble का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। soluble मतलब कोई भी चीज जो है घुल जाना या मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लेमन शरबत बनाते हो, घर पर लेमनेड बनाते हो, तो उसमें आप जो है नमक डालते हो, शक्कर डालते हो। जब आप शक्कर मिक्स करते हो पानी में तो वो आपको पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। इसी तरह से आप जब नमक ऐड करते हो तो वो भी पूरी तरह से ऐड होके मिल जाता है पानी में। आप उसमें से नमक का एक पीस या शक्कर का एक छोटा सा दाना नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये कि शुगर एंड अ सॉल्ट बोथ आर सॉल्यूबल, मतलब पानी में घुल मिल जाने वाले। समझा? सॉल्यूबल का मतलब होता है पानी में घुलने वाला। तो वाटर जो है वो एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें ज्यादातर चीजें जो है घुल मिल जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है, जबकि इसके अपोजिट में तेल है या फिर दूध है या फिर और भी अदर सब्सटेंसेस है, उनमें बहुत सी चीजें जो है वो नहीं घुल पाती है, तो उन्हें हम इनसॉल्यूबल कहेंगे। जैसे अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नमक जो है वो कैरोसिन यानी जो आपका घासलेट जिसको बोलते हो आप, कैरोसिन जो है उसमें वो सॉल्यूबल नहीं है, उसमें वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि नमक जो है वो कैरोसिन में इनसॉल्यूबल है। तो सॉल्यूबल का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस में, लिक्विड में दूसरा सॉलिड सब्सटेंस उसमें मिल जाए, और अगर ना मिल सके तो हम उसे क्या कहेंगे? इनसॉल्यूबल कहेंगे। The property of a substance getting dissolved in called as solubility. When we look through a substance and see things on the other side, then the substance is said to be transparent. This property of a substance is called transparency. अभी आप जो है आपने कई बार, अम्मी जो है आपकी बारिश आती है तो आपको बाहर का नज़ारा घर में से देखना बड़ा शौक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अम्मी क्या करते हैं आपकी खिड़की जो है वो बंद कर देते हैं। अगर आपकी ग्लास जो है, विंडोज जो है वो कांच की बनी रहती है तो आप क्या करते हो? कांच में से बैठ करके बाहर का नज़ारा करते हो खिड़की से, तो आप जो है ग्लास के आर पार देख सकते हो। किसी भी चीज के आर पार देखने को उस सब्सटेंस की हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और अगर हम उसके आर पार नहीं देख सकते तो हम उसे क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। ओपेक मतलब उसके आर पार नहीं दिखता है। जैसे आप पेपर के आर पार नहीं देख सकते हो लेकिन ग्लास के आर पार देख सकते हो, तो ग्लास क्या हो गया? आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, और ग्लास की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। और जबकि पेपर जो है, पेपर के हम आर पार नहीं देख सकते तो हम उसे क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। मेटल्स, substances like copper, gold, iron, aluminium are called the metals. Metals are found in the form of minerals deep inside the earth. Metals are found in the earth crust. Minerals of the earth crust are proposed to obtain the metals. In daily life, metals have various important uses. Properties of metals. Malleability. Take a piece of copper or an aluminium wire or a small nail.
Hammer it repeatedly. On hammering repeatedly, the wire becomes flat. That is, it forms a thin sheet. The metal can be converted into thin sheet by hammering. This property of metal is called malleability. अब यहाँ पर मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप जब जो है मेटल्स को, आपने देखा होगा घर में भी आपके पास जो है वो आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल के जो बिल्ले जिसको आप बोलते हो, वो आप जो है ओपनर से निकालते हो, फिर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पीट करके उनसे जो है कॉइन का शेप देते हैं। तो आपने देखा होगा कि मारने पर आप जब मेटल्स को हिट करते हो, बहुत अच्छे से हैमरिंग करते हो, तो तब क्या होता है कि वो अपने शेप को चेंज करती है। और जब वो अपने शेप को चेंज करती है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि किस तरह से वो चेंज कर रही है, एक थिन शीट बन रही है। थिन शीट बनने को हम क्या कहते हैं? मेटल्स की मैलिएबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर मेटल्स को हिट किया जाए, मारा जाए हैमर से, तो वो अपना शेप जो है एक थिन फ्लैट शीट के तौर पर चेंज करती है। यही प्रॉपर्टी मेटल की क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में स्टील की प्लेट में खाना खाते हो, अम्मी जो है पतीली का जो आपका ढक्कन होता है, आपका जो वेसल होता है जिसमें अम्मी खाना पकाते हैं, उसका ढक्कन जो है वो फ्लैट होता है, थिन शीट के जैसा होता है ना। जो लिड होता है उसका वो थिन शीट होता है, तो वो थिन शीट होती है। तो ये किस तरह से बनता है? सिंपली ये भी इसीलिए बन पाता है क्योंकि मेटल्स में वो प्रॉपर्टी है कि उनको मारने पर या हिट करने पर जो है वो एक थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। और यही कन्वर्शन की जो प्रॉपर्टी है उनकी, उसे हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। Ductility. Hot iron is hammered continuously. The iron can be drawn into a wire. Metals can be stretched and drawn into wire. This property is called as ductility. अभी देखिए क्या बता रहा है, आपको डक्टिलिटी बता रहे हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स को मारकर या उनको हिट करके या उनको किसी तरह से उनका शेप करके अगर पतले से वायर में कन्वर्ट किया जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। आपने घर में जो देखा होगा, घर में जो वायरिंग होती है, आपने बच्चों ने देखा होगा या आप खुद भी देखे होंगे कि घर में जो वायरिंग होती है, वो वायर को जब साफ करते या छीलते तो अंदर से छोटा छोटा जो है वायर निकलता है, मेटल का वायर होता है, और वो वायर हम कहते हैं कॉपर का वायर। कॉपर का वायर, कॉपर भी एक मेटल है जो बहुत अच्छी तरह से हम उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखे होंगे अम्मी जो बैंगल पहनते, गोल्ड का बैंगल पहनते हैं, वो गोल्ड का बैंगल भी अम्मी इसीलिए पहन पाते क्योंकि गोल्ड में प्रॉपर्टी है कि वो एक वायर की तरह बन जाए और उसकी जो है फिर आसानी से बैंगल बनाई जा सकती है। तो इसी तरह से जो हमारे आसपास की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मेटल से बनी हुई, आप उसमें देखिए कि किस तरह से मेटल्स को मोड़ तोड़कर, मरोड़ कर और उनको हिट करने पर या उनको मार कर उसके वायर्स बनाए जाते हैं। और यही प्रॉपर्टी मेटल की क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। Metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into fine wires. Electrical conductivity. Electricity flows through the metals. All metals are conductors of electricity to a greater or a lesser extent. This property is called electrical conductivity. Now, we knows that metals are good conductors of electricity. आपको मालूम है कि घर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दी है कि घर में जो वायरिंग होती है उसमें जो है हम कौन सा वायर यूज करते हैं? कॉपर का वायर यूज करते हैं, है ना। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत अच्छी मेटल है जिससे जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है तेजी से, आसानी से पास होता है। तो सिर्फ कॉपर ही नहीं, ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को जो है अपने आप में से पास होने देती है। तो हर मेटल की ये प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से पास होने देती है, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो थ्रू आउट होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स जो है तेजी के साथ, आसानी के साथ इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देती है। थर्मल कंडक्टिविटी. Even a piece of a metal is heated at one place, the whole it becomes hot.
It shows that metals allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. Thermal conductivity, अब जिस तरह से हमने क्या बताया आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी तरह से थर्मल, थर्मल मतलब हीट, थर्मा या थर्मल मतलब हीट होता है। तो आपने देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं। आपने देखा होगा अम्मी जो है क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते कभी गलती से या भूल से जो है अम्मी क्या करते हैं, जो गरम वेसल है गैस के ऊपर रखा हुआ है, उस वेसल के ऊपर अम्मी ने चम्मच रख दी है। अब थोड़ी देर के बाद आप जो है वो चम्मच जो है गलती से जाकर के पकड़ लेते हो, तो आपको चम्मच आपने वहां नहीं पकड़े जहां पे चम्मच जो है पतीली को टच कर रहा है या वेसल को टच कर रहा है। क्या होता है, आप एक उसको छोटे से एंड पे पकड़ते हो, लेकिन आप जो है फौरन से चम्मच फेंक देते हो, बोलते हो हाथ में चटका लग गया है, छाला आ रहा है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो चम्मच जो है या स्पून जो है आपका, वो क्या होता है, वो एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन हीट जो है वो उसमें पूरी तरह से पास होते हुए उसके आखिर एंड पर जहां पर आप पकड़ते हो वहां तक के पास हो गई है। तो इसीलिए आपको जो है क्या लगता है, चटका लगता है, गरम लगता है, इसीलिए आप क्या करते हो, चम्मच को फेंक देते हो डर के मारे कि हमें छाला आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम आपको कि जो मेटल है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको एक एंड पर गर्म किया जाए तो वो पूरा का पूरा जो है, पूरी मेटल जो है हीट को पास आउट करती है और सारी मेटल जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, सारा सब्सटेंस जो है वो गर्म हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को मेटल की हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। लस्टर, metals have a typical shine or a luster. Every metal has a characteristic color by which it can be identified. Now अभी लस्टर, लस्टर का मतलब चमक होता है। आपने देखा होगा आपके घर में स्टील के बर्तन, अम्मी जो है जर्मन के बर्तन, या फिर आपके पास अम्मी के पुराने ज़माने के कॉपर के बर्तन, दादा दादी के ज़माने के कॉपर के बर्तन होते हैं, या फिर अम्मी जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं अम्मी, वो आपकी गोल्ड की बनी होती है या कभी कोई सिल्वर की बनी होती है। तो उसमें एक तरीके की अजीब सी चमक होती है। इस चमक को हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या, प्लक द स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल स्ट्रिंग लाइक तानपुरा और वीणा, रिंग अ बेल और हिट अ स्टील बॉक्स विद अ मेटल स्पून। Metal produce a ringing sound. This property is called sonority of metals. अभी सिंपल, आप जो आपने बचपन में कई बार किया होगा, आप जो है एक प्लेट लेते हो, एक चम्मच लेते हो, उसको जोर जोर से बजाते हो, तो क्या होता है, बहुत जोर से साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसको हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। मतलब हर मेटल जो है अपने अंदर किसी न किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी रखती ही है कि उसे अगर हिट किया जाए, उसे अगर मारा जाए तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो है विंडो पैन होता है। विंडो पैन मतलब जो आप बारिश के लिए छत पे लगाते हो, मेटल से बना होता है, उस पर बारिश के ड्रॉप्स गिरते हैं, तब भी जो है क्या मिलता है आपको, साउंड मिलता है, एक अलग तरीके का साउंड। यानी हम पहचान जाते हैं कि बारिश आ रही है। क्यों पहचान जाते हैं, क्योंकि जो आपका विंडो पैन है उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिरने से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स की, जिसकी वजह से उसे हिट किया जाए या उसे मारा जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। Summary: solid, liquid and gases are the three states of substances. When a substance changes from one state to another, the process is called change of states of the substance. Heat is cause of change of state of a substance. The temperature of a substance, hot, cold, can be measured with the help of thermometer. Substances have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. Metals form a separate groups of substances. Metals have
have some common characteristics like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster, and the characteristic colors. Here we are ending up our chapter number 5. Before going to end up the lesson, I am requesting you to like and subscribe my channel for the new and updated video. Assalamu alaikum, jazakallahu khair.